میرے شوہر نے ہم دونوں کو بلایا اور پھر شوہر نے کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ میرا نام جویریہ ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ میں شہر میں کام کرتی تھی اور وہیں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا ہوا تھا۔ میرا گھر گاؤں میں تھا اور گاؤں کے لوگ آج بھی پرانے طور طریقوں پر زندگی گزار رہے تھے کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ عورت یہ کر سکتی ہے اور نہ وہ کر سکتی ہے، بس سکون سے اپنے گھر پر رہے۔ حالانکہ آج کے جدید دور میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ مرد اور عورت میں بہت فرق کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے قانون میں تو ایسا نہیں ہے، وہاں پر تو مرد اور عورت برابر ہیں اور قانون کی نظر سے عورت اس معاشرے میں مکمل آزادی کے ساتھ کوئی بھی اچھی چیز کرنا چاہتی ہے تو اس چیز کی اجازت دی گئی ہے اور اس کا تحفظ حکومت کے ذمہ ہے۔ اس وجہ سے اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر میں آ گئی۔ یہاں پر میں ایک فیکٹری میں کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی، گوری رنگت، بڑا ہوا جسم اور اچھی فطرت کی مالک تھی۔ میرا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے والدین بچپن ہی میں اس دنیا سے چلے گئے تھے اور میں اپنے چاچو کے پاس رہتی تھی۔ میں نے انتہائی مشکل میں وہ دن گزارے۔ میں 16 سال کی تھی جب چاچو مجھے اپنے گھر لے کر آئے تھے۔ میری چچی ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی، اپنے بچوں کو ہمیشہ مجھ سے زیادہ توجہ دیتی اور مجھ پر تو کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ پہلے تو میرے ساتھ چچا ٹھیک رہتے تھے، لیکن کچھ وقت کے بعد میری چچی نے ان کا ایسا دماغ خراب کیا اور ان کو میرے خلاف ایسا بھڑکایا کہ وہ بھی بالکل چچی کی طرح ہو گئے، بالکل چچی سے بھی 2 قدم آگے ہو گئے۔ ان حالات میں میرا ان کے گھر پر رکنا بہت ہی مشکل تھا۔ میں نے کئی بار اپنے چچا سے بات کی کہ مجھے بھی پڑھنا ہے، آپ کے بچے بھی پڑھنے جاتے ہیں، لیکن چچا نے کہا تم گھر پر ہی رہو اور اپنی چاچی کے ساتھ گھر کے کام میں مدد کیا کرو۔ میں 8ویں جماعت تک پڑھی ہوئی تھی۔ میں پڑھائی میں کافی اچھی تھی، لیکن پھر بھی اس معاملے میں میری قسمت بہت خراب تھی۔ خیر یہ سب کچھ بھی میں نے برداشت کر لیا۔ پہلے تو چچا مجھے کبھی کبھار تھوڑے پیسے دے دیا کرتے تھے، لیکن پچھلے 2 سال سے انہوں نے مجھے پھوٹی کوڑی نہیں دی اور مجھ سے دن رات گھر کا کام کرواتے۔ کوئی مہمان آ جاتا تو اس کو بھی میں ہی سنبھالتی، گھر کی صفائی دیکھتی، برتن دھوتی، تو میں تو جیسے ان کی ملازم بن کر رہ گئی تھی اور میں شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں خود مجبور تھی اور میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا اور میں چپ چاپ اسے برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن شام کو میں کھانا بنا رہی تھی کہ چاچی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی جویریہ کھانا کھانے کے بعد رات کو کمرے میں آنا، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے چاچی سے کہا میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ جب میں ان کے کمرے میں پہنچی تو چاچی نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ چچا بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چاچی نے کہا میں نے تمہارا رشتہ طے کیا ہے میری بہن کے بیٹے ارسلان سے۔ میں تو ارسلان کو کافی اچھے طریقے سے جانتی تھی، 1 نمبر کا شرابی انسان تھا۔ اس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی اور اس نے اپنی بیوی کو اس قدر مارا کہ اس نے طلاق لے لی۔ وہ روز شراب پی کر اپنی بیوی کو مارتا تھا، گھر والوں سے جھگڑا کرتا تھا۔ جس دن اس کے پاس پیسے نہ ہوتے اس دن تو وہ گھر کی دیواریں توڑنے پر مجبور ہو جاتا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ چاچی میرے بارے میں برا تو سوچتی ہیں، لیکن اس قدر گھٹیا پن میری سوچ یہاں تک کبھی نہیں گئی تھی۔ خیر میں نے کچھ نہیں کہا، میں کہہ بھی کیا سکتی تھی۔ چاچی نے کہا جویریہ بس تم تیاری کر لو، میں مہینے میں ہی تمہارا نکاح کر دوں گی۔ میں کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی یہاں تو بہت مشکل سے زندگی گزار رہی ہوں، اگر چاچی نے میری اس کے ساتھ شادی کر دی تو پھر تو میں ختم ہی ہو جاؤں گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں چاچی سے کہوں گی کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ اگلے روز میں نے ہمت کر کے چاچی کو کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ جیسے ہی چاچی نے یہ سنا تو مجھ پر برہم ہو گئی، مجھے زور سے تھپڑ مار کر کہنے لگی تمہاری میرے سامنے اس طرح بات کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تم ہوتی کون ہو میرے فیصلے پر انگلی کرنے والی؟ اپنی اوقات بھول گئی ہو کیا؟ اپنی حد میں رہو۔ میں نے کہہ دیا ہے تو تمہارا نکاح ہو کر رہے گا۔ میں روتی روتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی اور یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ خیر میں نے اپنا سامان باندھا اور رات کو چپ چاپ گھر سے نکل گئی۔ میں نے کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیے تھے تاکہ راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور کچھ دن کا گزارا ہو جائے۔ جب میں شہر پہنچی تو پہلے 4-5 دن تو مجھے کوئی کام نہ ملا۔ میں نے کافی جگہ پر جا کر پوچھا کہ مجھے کام کی ضرورت ہے، لیکن مجھے کسی نے کام پر نہیں رکھا۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ اس شہر میں ایک کپڑے کی فیکٹری ہے جہاں کا مالک بہت اچھا ہے اور ایسی لڑکیوں کی بہت مدد کرتا ہے۔
तुम्हें वहाँ एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए, शायद तुम्हारा काम बन जाए। अगले दिन फिर मैं वहाँ पर चली गई। फैक्ट्री काफ़ी बड़ी थी। मुझे ऑफिस के बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा गया। 2 घंटे के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और मुझसे काफ़ी सवाल किए कि पहले कभी सिलाई का काम किया है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मैं जब करूँगी तो मैं सीख जाऊँगी। तो ऑफिस वालों ने कहा, नहीं, हमें वो मुलाजिम चाहिए जो काम को समझते हों, क्योंकि इस तरह हमारा बहुत नुकसान हो सकता है और हमारा कपड़ा बहुत महंगा है, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। मेरी आंखों में आंसू थे। जब मैं बाहर निकली तो फैक्ट्री का मालिक किस्मत से सामने खड़ा था। ज्यों ही इसने मेरी हालत देखी तो मुझे बुलाया और कहा, लड़की क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? फिर मैंने उनको सब कुछ बताया। इनका नाम इमरान था। वो बहुत ही अच्छे दिल के आदमी थे। तो इन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आज से तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। जैसे इन्होंने ये कहा तो मैं बहुत खुश हुई। फिर उन्हें कहा, रोना बंद करो, मुझे उम्मीद है तुम बहुत अच्छा करोगी। अगले दिन मैंने काम पर आना शुरू कर दिया। जिस एरिया में मैं बैठकर काम करती थी, इसी एरिया में इमरान साहिब का दफ्तर था। अक्सर काम में मशगूल रहती थी और बहुत नफासत से काम को सीखने की कोशिश कर रही थी। इमरान साहिब भी आते जाते मुझे हौसला देते थे कि कोई नहीं, तुम कर लोगी। इनकी बातों ने मुझे बहुत उभारा और आखिरकार मैंने इस कदर अच्छा काम किया कि मैं अपने उसी एरिया की इंचार्ज बन गई। इस अरसे में मुझे इमरान साहिब से मोहब्बत हो गई थी। होती भी क्यों ना, इतने अच्छे दिल का शख्स, इतनी खलूस नीयत से बात करने वाला आदमी मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा था। क्योंकि गांव में तो मुझे सब हिकारत की निगाह से देखते थे, जैसे मैं सबके लिए एक शर्मिंदगी हूँ, और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। अगर मेरे वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरे रिश्तेदार मेरे साथ ऐसा सलूक करें और मेरे वालिदैन की जगह पर भी कब्जा कर लें और मुझे अपने पास रखें और मुझ पर इतना जुल्म सितम करें, मुझसे काम करवाएं, और फिर भी मेरी इज्जत इनके लिए कुछ भी नहीं है। मैं उनके नज़दीक फिर भी शर्मिंदगी का ही बाइस हूँ। और शहर में इस तरह मुझे इस कदर इज्जत दी जा रही है और मुझे बराबरी का रुतबा दिया जा रहा है। मैं क्यों ना खुश होती। जिस शख्स ने मेरी उस वक्त मदद की जब मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, तो उस शख्स को हमेशा अच्छे ही अल्फाजों में जानूंगी और हमेशा दिल से ही उनकी इज्जत करूंगी। इस अरसे में मुझे इनसे मोहब्बत हो गई। मैं चाहती थी कि मैं जो इनके लिए महसूस करती हूँ वो भी मेरे लिए वही महसूस करें। ऐसा ना हो कि इनको मुझसे मोहब्बत ना हो और मैं इनसे जाकर इजहार कर दूँ। मैं तो इनके लिए पागल हूँ। खैर, इमरान भी मुझे अक्सर देखते थे क्योंकि मैं खूबसूरत तो थी। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि शाम को ऑफिस की तरफ से पार्टी थी। सारी मुलाजमीन को पार्टी के लिए तैयारी करनी थी, इसलिए छुट्टी भी जल्दी हो गई। पार्टी इस वजह से दी जा रही थी कि कंपनी को इस साल बहुत मुनाफा हुआ था, जिसकी खुशी में एक होटल में पार्टी रखी गई थी। मैं जाने ही लगी थी कि इमरान ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और कहा, जवेरिया, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, जी बोले, मैं सुन रही हूँ। फिर उन्हें मुझे बताया कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था इस वक्त ही तुमने अपना दिल दे बैठा था। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी आपके लिए यही सोचती हूँ, लेकिन घबराहट में कह ना सकी और मैं इसी मौका की तलाश में थी कि कब आप मुझे इस बात का इजहार करेंगे। और मुझे लगता है जो किस्मत को मंजूर था वही हुआ। फिर इस तरह इमरान से मेरी शादी हो गई। लेकिन असल मुसीबत तो शादी के बाद शुरू हुई। मुझे तो लग रहा था कि अब जिंदगी काफ़ी आसान हो गई है। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ, अच्छा कमा रही हूँ, अच्छा शोहर है, लेकिन किस्मत को मेरी खुशी नसीब ना हुई। इमरान के घर में सिर्फ मैं, इमरान और इनकी अम्मी रहती थी, यानी मेरी सास। जब मेरी शादी हुई तो पहले तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। तकरीबन शादी के साल बाद मेरी पहली औलाद हुई, मुझे बेटी हुई थी। और इमरान से लेकर ऑफिस के सभी मुलाजमीन बहुत खुश थे, लेकिन एक शख्स को छोड़कर, जो कि मेरी सास थी। वो चाहती थी कि मुझे बेटा हो, उन्हें वारिस चाहिए था। खैर, मुझे उन्होंने कहा कि अगर बेटा होता तो और भी अच्छा होता। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये औरत किस तरह की बातें कर रही हैं। औलाद तो नेमत होती है। खैर, कुछ वक्त गुजरता गया और इस तरह मुझे दूसरी औलाद हुई, लेकिन वो भी बेटी ही हुई। इस बार हम सबको यकीन था कि बेटा ही होगा, क्योंकि हमने डॉक्टर से भी चेक करवाया था और इन्होंने भी हमें तसल्ली दी थी कि आप बेफिक्र रहें। इसकी वजह से मेरी सास और इमरान बहुत खुश थे। इमरान भी यही चाहते थे कि इन्हें वारिस चाहिए
लेकिन अभी ये सब कुछ तो मेरे हाथ में नहीं था। खैर, मेरी दूसरी बेटी के बाद मेरी जिंदगी अजीरन बन गई। मुझे तो मेरी सास पहले ही अच्छा नहीं समझती थी और अब तो इसने मुझसे इतनी नफरत करना शुरू कर दी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और इमरान का हाल भी यही था, लेकिन इनका कुछ फर्क था। वो अपनी माँ की बातों में आकर मुझसे झगड़ा किया करते थे, लेकिन फिर मुझसे माफ़ी भी मांग लेते थे। एक दिन मैं इमरान को लेकर एक अच्छे डॉक्टर के पास गई और उन्हें यह सब माजरा बताया। इन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, हम चाहते हैं कि हमें बेटा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वो लेडी डॉक्टर थी। फिर इन्होंने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। टेस्ट की रिपोर्ट आई तो इन्होंने मेरे शोहर के सामने मुझसे कहा, सॉरी मैडम, अब आपकी कोई औलाद नहीं हो सकती। जैसे ही मैंने ये सुना तो दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं इसके नीचे गिरती ही चली जाऊं। खैर, हम घर वापस आ गए। इमरान ने मुझे कहा, कोई बात नहीं। मेरी सास ने पूछा, हाँ भाई, तुम दोनों डॉक्टर के पास गए थे, क्या बना? फिर इमरान ने इन्हें बताया कि डॉक्टर ने ये कहा है। इन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा और अपने कमरे में चली गई। इमरान भी अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए और मैं जाकर अपने कमरे में सो गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझे बुलाया। इमरान भी बैठे हुए थे और कहने लगी, जवेरिया, मैंने ये फैसला किया है कि मैं इमरान की दूसरी शादी कर रही हूँ और ये शादी मेरी मर्जी से होगी। पहले तो इसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और मैं नहीं चाहती कि तुम इस फैसले पर कोई उंगली उठाओ। मैं पहले ही दुख में थी और ऊपर से मेरी सास ने इतना गहरा दुख वो सर पर दे मारा। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों ने वादा किया है कि हम दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई तो इमरान ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहने लगे, अब तो मैं शादी करवा कर ही रहूंगा, जो मर्जी हो जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी से इस तरह बात करने की? मैं रोते रोते अपने कमरे में चली गई। 2 महीने के बाद इमरान ने शादी कर ली और मेरी सौतन मेरे सर पर ला मारी। वो 18-19 साल की लड़की लगती थी, काफ़ी खूबसूरत थी। इसे देखकर मुझे काफ़ी जलन भी होती थी, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकती थी। जिस शख्स ने मुझसे मोहब्बत का वादा किया था, इसने ही मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो दूसरों में क्या उम्मीद रख सकती थी। खैर, एक दिन इमरान रात को मेरे कमरे में आए और सामने बैठकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे कि देखो, जो कुछ भी हुआ था वो गुस्से में हो गया था। मैं अपनी अम्मी को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इनके कहने पर दूसरी शादी कर ली। अब इस तरह इन्हें वारिस भी मिल जाएगा और वो जो चाहती थी कि शादी उनकी मर्जी से हो, वो भी हो गया है। मैं चाहता हूँ कि जो हो गया है वो मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं भी राजी हो गई। फिर कुछ अरसे के बाद इनको बेटा नसीब हुआ और वक्त के साथ साथ मेरा मुकाम और मर्तबा भी मुझे वापस मिल गया। मेरी सास ने मेरे साथ रवैया अच्छा रखना शुरू कर दिया। मेरी बेटियों से भी वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने पोते से तो वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। इस तरह मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजर रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।